پھول کم اور کانٹے زیادہ ہوں تو وہاں ایسے جا کر گرنا کہ تیرے جسم پر کانٹے ہی کانٹے چبھ جائیں۔ تو بدروح ہے، تجھے کانٹوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تیری مدد کو ذیشان ضرور آئے گا، بس باقی تو عورت ہے، ایک گندی بدروح مکار عورت۔ مرد کو کیسے قابو میں کرنا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس بھولے بھالے شریف نوجوان ذیشان کے ہاتھوں سے اپنے زخمی شریر سے کانٹے نکلواتے ہوئے اپنے حسن اور نظروں کے تیروں سے اسے زخمی کر دینا، بس باقی کا سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا۔ ذیشان، میرا محبوب ذیشان، ذیشان، میرے محبوب ذیشان، آئندہ جمعہ کو 7 دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میرے ابا جان، میری امی جان اور میرے بھائی جان تو اتنا خوش ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ بھائی جان؟ یہ بھائی جان کہاں سے ٹپک پڑے؟ تمہارے گھر میں تو میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو گھر میں نہیں رہتی ہیں۔ تو آپ کہاں ہیں حضور؟ آہا، دیکھ لیا، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ آپ کی شکل آپ کی بہن کی شکل سے ہو بہو ملتی ہے۔ دیکھیے بھائی جان، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں کئی مرتبہ آپ کے گھر آئے، عابدہ سے، ابا جان سے، امی جان سے، سب سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ کے دیدار کبھی نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی میری بہن آپ کی یاد میں آپ کے خیال میں غائب ہو جاتی ہے، روٹی ڈال کر بھول ہی جاتی ہے۔ میں تو انہیں یاد رہتا ہوں کہ تمہیں پہ روٹی ڈال رہی ہے۔ ذیشان بھائی کو پھر کبھی یاد کرنا۔ یہی حال میرا بھی ہے۔ جانتی ہیں، ابا حضور ہر وقت مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ ذیشان میاں، تمہارا کام میں دھیان ہی نہیں رہتا، ہمیشہ عابدہ کے خیالوں میں ڈوبے رہتے ہو۔ اما ابھی تو شادی ہونے والی ہے، پھر عابدہ یہیں رہے گی تمہارے ساتھ۔ یہاں تو عابدہ اس کے ساتھ ہے، اس کی محبت کے سامنے میرے حسن کا جادو نہیں چلے گا۔ حسن کا جادو پھر کیسے نہیں چلانا؟ اور دیکھتی ہے میری جان کا دشمن عابدہ کا بھائی طوطا جان بیٹھا ہوا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر طوطے، تو تلسمی طوطا ہو کر اس معمولی سے طوطے سے ڈرتا ہے۔ اب دونوں ہی گندے روح ہیں، اس لیے اللہ والا سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ مجھے کچھ گندی روحوں کی بدبو آ رہی ہے، اب یہاں سے چل دینا چاہیے۔ تمہارے بھائی جان تو بہت وہمی ہیں۔ نہیں، یہ وہمی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے ابا جان نے میرے بھائی جان کو بھی بہت سے وظیفے اور عمل سکھا رکھے ہیں۔ چلو چلتے ہیں۔ اب تم اور تمہارے بھائی جان کہہ رہے ہیں، پھر تو جانا ہی پڑے گا۔ آؤ۔
जीशान, मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। अपना और जादूगरनी मर्रिखा का इंतकाम लेकर रहूंगी। चले? बदरू, शरारा गुल, अब तू जीशान की फिक्र कर। जीशान की, अब वो जब भी तुझसे मिलेगा तेरे इस गंदे हुस्न के जाल में मुश्किल से फंसेगा। और उस आमिल कामिल की फिक्र कर। अगर उस आमिल को पता चल गया कि तेरी बदरू को जिस्म मिल गया है तो तेरे इस जिस्म शरारा गुल को वो फिर से खत्म करने की कोशिश करेगा। और अभी तो तुझे जीशान की बीवी बनना है। याद रख, उस जीशान के पास उस आमिल का, उसके अल्लाह के कलाम का एक तावीज है। जब तक वो तावीज उसके पास रहेगा तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मैंने तेरे लिए एक पुराने महल का इंतजाम किया है। जो बाहर से दिखने में महल है पर अंदर से उजाड़ है, भयानक है। वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ लोग जाने से डरते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। सिर्फ चुड़ैलें रहती हैं, तो जैसी डाइनें रहती हैं, जो कि तेरी पुरानी सहेलियां हैं। बस बस वही जगह मुझे चाहिए। मैं वहीं जाऊंगी और अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अपने शिकार को खाऊंगी। आज अंधेरी काली रात है। अभी मैं अपना शिकार तलाश करने जाती हूँ। बेटे अकरम, और लो और खाओ। नहीं फूफी जान, बस। अरे खाइए ना अकरम भाईजान। अरे बरखुरदार, खाओ 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 ना। फूफा जान, अरे भाई अकरम, आज तो तुम बहुत तकल्लुफ करने लगे हो। अम्मी जान, जब से अकरम को ये पता चला है कि इनकी शादी हमारी छोटी बहन मासूमा से होने वाली है, तब से ये हमारी बचपन की दोस्ती को ही भूल गए और इस जगह को अपनी ससुराल समझकर तकल्लुफ करने लगे हैं। अच्छा तो फूफा जान, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अरे भाईजान, हमारी आपा जान से
रुक जाओ अशरीफ नौजवान, रुक जाओ। क्या बात है? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कैसी मदद? क्या हुआ आपको? कौन है आप? मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, अंधेरी रात है, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, लेकिन इतनी अंधेरी रात है, आप अकेली कहाँ से आ रही हैं? मैं शहर से आ रही हूँ, रास्ते से भटक गई और यहाँ पहुँच गई। चलते चलते थक गई थी तो यहाँ खड़ी हो गई कि शायद मेरे किस्मत से कोई मेरी मदद को आ जाए, और आप आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है इतनी अंधेरी काली रात में भूत, चुड़ैल, डाइन, जिन आदि मिल जाते हैं। हाँ, ये सच है। ये सब झूठ है, वहम है ऐसी बातों का। गंदी रूहों का कोई वजूद नहीं होता। मुझे खुशी है कि ऐसी बातों पर आपको यकीन नहीं। मुझे अपने घर तक जाने के लिए आप जैसे ही शरीफ और बहादुर नौजवान की जरूरत थी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? पुराने महल में। पुराने महल में? लेकिन पुराने महल में तो कोई नहीं रहता। आप सही फरमा रहे हैं। मेरा मतलब है पुराने महल के पास उससे पर थोड़ा ही आगे रहती हूँ। अच्छा चलिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मेरे साथ चल रहे हैं। आइए हम इस तरफ से चलें। ये रास्ता मुख्तसर है। आप रास्ता जानती हैं? हाँ, लेकिन अकेली होने की वजह से डर रही थी। अब आप जो साथ में हैं तो मुझे कोई डर नहीं। अच्छा चलिए। अंधेरी रात है और भाईजान मेरे दोस्त कह रहे थे ज्यादा रात में घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। चुड़ैलें डाइनें घूमती फिरती हैं। यह अल्लाह वालों का दिया हुआ अल्लाह के नाम का ताबीज तुम्हें हर बला से महफूज रखेगा। क्या खबर है ऐ मेरे मुखबिर जिन? बुरी खबर है मेरे आका। बयान कर, जल्दी बयान कर। 5 साल पहले मेरे आका, जिस बदरूह डाइन का जिस्म तूने अपने रूहानी व जलाली इल्म से जलाकर खाक कर दिया था, अब उसी बदरूह डाइन को जादूगरनी मर्रिखा ने मरी हुई खूबसूरत औरत का हसीन जिस्म दे दिया है। वो औरत कौन थी? उसकी तफसील बयां कर।
वो औरत कोहिस्तानी किले की हसीन शहजादी शरारा गुल थी, जो कि एक खतरनाक जादूगरनी थी, जो कि दिन में इंसान बनी रहती थी और रात को वो नागिन बन जाती थी। शरारा गुल ने 20 शादियां की थी। जिस आदमी से वो शादी करती, पहले 7 दिन उसे खूब खिलाती पिलाती, उसके बाद शरारा गुल अपने मुंह से चिंगारियां निकालती। वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन जाती। इसीलिए उस शहजादी का नाम शरारा गुल था। शादी की रात को सुहाग रात ने ही अपने शौहर को नागिन बनकर दस लगी। किसी को भी ये राज मालूम नहीं था। सिर्फ जादूगरनी मरीखा जानती थी, और जादूगरनी मरीखा ने एक जादूगर सपेरे को शहजादा बनाकर उससे शादी करने के लिए भेजा। जब शरारा गुल ने बिस्तर पर मुंह से चिंगारियां निकाली, तो वो चिंगारियां बिस्तर पर गिरते ही फूल बन गई। और शरारा गुल नागिन बन गई। वो जादूगर सपेरा बड़ा जहरीला नाग बन गया, और नाग ने उस नागिन को डस लिया। नाग के डसते ही शरारा गुल नागिन से इंसान शरारा बन गई। दुल्हन के लिबास में वो मर गई। वो जादूगर सपेरा शरारा गुल की लाश को उठाकर जादूगरनी मरीखा के तहखाने में लेकर आ गया, और जादूगरनी ने शरारा गुल की लाश को 20 साल तक अपने कैद में रखा। और अब शरारा गुल के जिस्म में भटकती हुई उस बदरूह लाइन को दाखिल कर दिया। मेरे आका शरारा गुल 20 शादियां करके अपने 20 शोहरों को मार चुकी है, और अब अगर शरारा गुल ने 21वीं शादी की और अपने 21वें शौहर को भी मार डाला। शरारा गुल ने अगर 21वीं शादी कर ली तो अपनी ताकत के घमंड में किसी की भी परवाह नहीं करेगी। रोजाना अमीर, गरीब, मासूम, बेगुनाहों का खून बहाया करेगी। इसलिए ऐ मेरे जिन, इंसानों के खादिम, मुखबिर जिन, तू शरारा गुल और जादूगरनी को चुराही में या फिर शीशे के बर्तन में कैद करके ले आ। मुझे माफ कर मेरे आका, वो तेरी और मेरी हद से दूर है। जादूगरनी और शरारा गुल जहाँ रहती है वहाँ ऐसी हैसार बनी हुई है कि उसे तोड़कर अंदर जाना मुश्किल है। अगर वो कभी तेरी या मेरी हद के अंदर से गुजरेगी तो तेरा ये वफादार गुलाम जिन उन्हें कैद करके ले आएगा। खैर तो है? क्या बात है? आज मैं आपके चेहरे पर फिक्र और परेशानी की परछाई देख रही हूँ। अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए अब्बा जान, वो जो भी करेगा ठीक ही करेगा। फिर भी बताइए तो सही, ऐसी क्या बात है? आज से पहले मैंने आपको
इतना परेशान और फिक्रमंद कभी नहीं देखा। परेशानी की बात तो यह है बेटी कि जिस बदरूह डायन को मैंने और तुमने अपने जलाली इल्म से जला दिया था, वही बदरूह डायन एक खतरनाक जादूगर औरत शरारा गुल के जिस्म में दाखिल हो गई है, और मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह के बंदों को नुकसान न पहुंचाए। अगर उसने नुकसान पहुंचाया तो जो इल्म आपने मुझे बख्शा है उसी से मैं उसको कैद कर लूंगी या फिर जलाकर राख कर दूंगी। शाबाश बेटी आबिदा, मुझे तुम्हारे इल्म पे पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि जो तुम कह रही हो वो तुम कर भी सकती हो। मैं चाहता हूँ कि शादी की तैयारी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लो। मैं चाहता हूँ कि चांद की 10 तारीख से पहले ही 5 तारीख को ये